Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class, student. Today date is 25th January 2021 and I am teaching you chapter number 13 and name of the chapter is story of the name of the chapter is the story of a wheel. The story of a wheel. Now student, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in the previous video we have started the book exercises. Okay, in the previous video we have started the book exercises. Question number A, fill in the blanks using correct option. So this question we have already completed. The question number B, put these sentence in the correct order. So what do early man do at that time? We have to arrange the sentences in the right order. So question number B, put these sentences in the correct order. This also we have completed in the book. So now let's start with question number C. C, write true or false. Question number C. Question number 1. Early man moved on Question is, early man moved on wheels from the very beginning. Early man moved on the wheels from the very beginning. So in this statement it is said that early man moved on the wheels from the very beginning, from the starting times they are moving on the wheel. So student, this is a false statement. We know that in the beginning time the early human beings, they are also living a life like animals in the forest, and they move from one place to another in search of food and shelter. And how they move? They walk from one place to another in search of food and the shelter. So this is the false statement. This is the false statement. Is it clear? This is a false statement.
Horse and donkeys were used for carrying load. Horse and donkey. Horse and donkeys were used for carrying loads. ठीक है. So yes, student, this is a true statement. Horse and donkeys are used for carrying loads. Early human beings kill the animal and he carry that animals on his back. On his back. But now, when the early human beings learn how to tame the animals, ठीक है, स्टार्टिंग में जब वो एनिमल्स को किल करता था, then he carry the animals on his back. But when the early human beings learn how to tame मतलब होता है वश में करना आ जाना, उसे ये एनिमल्स को कंट्रोल करना आ गया. ठीक है. देन लॉट ऑफ चेंज कम इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन. देन उसने क्या किया, कुछ एनिमल्स को अपने साथ रखना स्टार्ट कर दिया. अब इन एनिमल्स से उसे बहुत फ़ायदा मिलता था, मिल्क भी मिलता था इस एनिमल से. ठीक है. और इवन इन एनिमल्स को वो यूज़ करने लगा हैवी लोड्स को कैरी करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो द क्वेश्चन इज हॉर्स एंड donkeys were used for carrying load. So this is true. This is true. ये ट्रू आंसर है. नाउ नेक्स्ट है राफ्ट्स वर यूज्ड टू लोड थिंग्स. Rafts are used to load things. Okay. So next question, rafts are used to load things. सो दिस इज, देखो राफ्ट्स क्या होता था ओल्ड टाइम में, अगर रिवर्स को क्रॉस होता था तो लॉग ऑफ वुड्स जो होते थे उनको आपस में एक संग टाइटली बांधने के बाद, क्योंकि वी नो डैट ऐसा है कि लकड़ी जो है बेटा पानी में डूबती नहीं. ठीक है. तो अर्ली ह्यूमन बींग्स ने तो इस तरह राफ्ट से वो लोग क्या करते थे, रिवर क्रॉस करने का काम भी करते थे. अब तुम कहो कि बहुत ज़्यादा हैवी लोड दे कैन यूज टू कैरी द, बहुत हैवी लोड तो राफ्ट से नहीं जाएगा, बट सम लोड दे कैन कैरी विद द हेल्प ऑफ द राफ्ट. सो दिस इज ट्रू. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट है टुडे 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 मोस्ट ऑफ द व्हीकल, टुडे मोस्ट ऑफ द vehicles, today most of the vehicles are
दिस इज ट्रू स्टेटमेंट स्टूडेंट। इन प्रेजेंट टाइम बेटा अगर आप देखो तो देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, ठीक है, और ये व्हीकल्स किस पे मूव करते हैं? रोड पे। तो आज के प्रेजेंट टाइम में अगर आप बेटा देखो तो देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स विच आर मूविंग ऑन द रोड। सो टुडे मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स रन ऑन व्हील्स। So and how these vehicles move from one place to another through the wheels, ठीक है, ये सारी मैन मेड मशीन्स हैं। तो आज आप प्रेजेंट टाइम में देखते हो कि वैरायटी ऑफ व्हीकल्स हैं जो रोड पे मूव कर रहे हैं, और उनकी मूवमेंट कैसे होती है? ड्यू टू द व्हील, ठीक है, उनकी मूवमेंट कैसे होती है? देयर मूवमेंट, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर through the wheel. So this is the true statement. Question number C we have completed. Now let's start with question number D. Give short answer. Question number D. Give short answer. Where did early man live? Question number 1. Where did early man live? So student, in the beginning time, early man, they are also living like animals in the forest, ठीक है, अर्ली मैन भी एनिमल्स की तरह क्या फॉरेस्ट में ही रहते थे, बिकॉज एट दैट टाइम दे डोंट हैव नॉलेज, उन्हें ये नहीं पता था बेटा कि घर कैसे बनाते हैं। तो फॉरेस्ट में अगर कोई गुफा उन्हें मिल जाती थी, केव्स, तो उसी में वो लोग रहते थे। क्यों? क्योंकि अर्ली मैन्स को भी वाइल्ड एनिमल्स में, कार्निवोरस एनिमल, जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को किल करके उसका फ्लैश खा जाते हैं, तो अर्ली एनिमल्स को, अर्ली ह्यूमन बींग्स को इनसे डर लगता था, इसलिए वो गुफाओं में छुप के रहता था उनसे। इज इट क्लियर? सो द क्वेश्चन इज वेयर डिड अर्ली मैन लिव? सो द आंसर इज अर्ली मैन लिव इन केव्स। अर्ली मैन कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे। अर्ली मैन lives in caves. So question number 2. Question number 2. Why did early man move from place to place? Why did early man moved
Why did early man moved from place to so student, early man moved from place to place in the beginning because at that time they don't know how to do cultivation, how to grow the crops. ठीक है, उस समय उन्हें ये भी नहीं पता था कि क्रॉप्स को कैसे ग्रो करते हैं, कल्टीवेशन कैसे करते हैं। जैसे अर्ली ह्यूमन बींग, जैसे एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते थे, इसी तरह अर्ली ह्यूमन बींग्स की भी लाइफ थी, वो भी फॉरेस्ट में रहते थे लाइक ए एनिमल्स, एंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ ए फूड। ठीक है, फूड की सर्च में वो लोग वन प्लेस से अनदर प्लेस पे क्या करते थे, मूव करते रहते थे इन द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। फूड और शेल्टर के लिए वो लोग वन प्लेस से अदर प्लेस पे मूव करते रहते थे। ठीक है, क्योंकि उस समय उन्हें कल्टीवेशन मतलब क्रॉप्स लगाने की, खेती करने की कोई नॉलेज नहीं थी। तो बेटा आप लोग को पता है ना, हर किसी को जीने के लिए एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है और इसको भी एनर्जी चाहिए, तभी तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। और हाउ दिस इज पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल व्हेन वी ईट द फूड। और फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। इसलिए अर्ली ह्यूमन बींग्स भी फूड की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अब ये आंसर देखिए। अर्ली मैन moved place to place in search of food and shelter. Early man moved from भी तो होगा। Early man moved from place to place in search of food and shelter. Food and shelter. Now next question. First of all, you note down the answer and you can take a screenshot also. आप screenshot भी ले सकते हो बेटा। Now question number 3. Give a
few examples. Give a few example of objects with wheels. Give a few examples of objects with wheels. Answer. So student, objects with wheel are so there are many things in which you can see the wheels. In all variety of vehicles, जितनी भी variety of vehicles है which you see, which move on the road from one place to another on wheels. So in variety of vehicles you can see the wheel. You can also see the potter wheel. आपको potter wheel के बारे में पता है ना, जिसपे potter क्या होता है, वो पर्सन जो मिट्टी के बर्तन बनाता है. तो in that also you can see a wheel. Watches हैं, clocks हैं, ठीक है. तो पूछा है give a few example object with wheels. अगर आप watches और clocks देखो तो इसमें भी wheels है. जनरेटर है. इन जनरेटर आल्सो, आप जनरेटर को देखेंगे तो जनरेटर में भी आपको व्हील मिल जाएगी, ठीक है. फिर है मशीन इन फैक्ट्रीज. देयर आर लॉट ऑफ मशीन्स इन द फैक्ट्रीज इन विच यू आर एबल टू सी द व्हील, ठीक है. बहुत सी फैक्ट्रीज में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ठीक है. वहाँ भी आपको व्हील देखने के लिए मिल जाएगी बेटा. नेक्स्ट है स्विंग मशीन. स्विंग मशीन क्या होता है बेटा, जिस मशीन पे आपकी मम्मी लोग कपड़े को स्टिच करने का काम करती है ना, कहीं कपड़ा न्यू क्लोथ सिलना है या कोई कपड़ा फट जाता है तो उसको बनाने का, स्टिच करने का काम थ्रेड से करती है ना आपकी मम्मी लोग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्विंग मशीन बोलते हैं, ठीक है. सो नोट डाउन द आंसर. वैरायटी ऑफ व्हीकल्स में आपको व्हील्स मिल जाएंगे. व्हीकल्स में पॉटर्स, पॉटर व्हील. वॉचेस में व्हील देखने को मिल जाएगा. वॉचेस भी लिख सकते हो, क्लॉक भी लिख सकते हो, ठीक है. जनरेटर है. जनरेटर, मशीन इन फैक्ट्रीज, machine in factories, sewing machine, so these are the object in which you are able to see the, ये वो ऑब्जेक्ट है जिसमें आपको देखने को क्या मिल जाता है बेटा, व्हील देखने को मिल जाती है, ठीक है. अब शॉर्ट क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर ही लिया. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई स्टार्ट करते हैं.
Note down the answer or you can take a screenshot. Answer the following questions. Question number E. ठीक है. Now first question is describe the potter wheel. So first of all let discuss what is a potter wheel. ठीक है. So जब बेटा ह्यूमन बींग्स को जब कल्टीवेशन करना आ गया, ओके, when the human being are able to do the cultivation, now the next problem which they are facing is that where they kept their grains. ठीक है. अब ह्यूमन बीइंग की भी लाइफ सेटल हो गई, उसे कल्टीवेशन खेती करने आ गई, क्रॉप्स लगाने आ गई. तो अब नेक्स्ट उनके सामने जो चैलेंज था वो क्या था, जो अब जो अनाज हो रहा था, जो ग्रेन्स हो रहा था, वेयर ही केप्ट दैट ग्रेन्स. सो अब क्या हुआ, नाउ द ह्यूमन बींग्स विद द हेल्प ऑफ द क्ले दे स्टार्ट मेकिंग द पॉट्स, दे स्टार्ट मेकिंग द कंटेनर्स टू केप्ट द ग्रेन्स. सो इन द बिगिनिंग क्या हुआ बेटा, जो उसने पॉट बनाए वो उसे सिर्फ सनलाइट में रख देता था. तो वो पॉट जो उसने बनाए दैट आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वो पॉट्स जो उसने स्टार्टिंग में बनाए वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे. ठीक है. बाई चांस कभी उसने ऐसा सोचा होगा, उसने कोई पॉट बनाया और उसे फायर में रख दिया, तो जब वो बेक्ड हो गया ना फायर में, देन दैट पॉट बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग. सो पॉटर व्हील, डिस्क्राइब द पॉटर व्हील कंसिस्ट ऑफ ए. पॉटर व्हील कैसे होती है, इसकी शेप कैसी होती है बेटा, पॉटर व्हील की राउंड शेप होती है. ठीक है. और सरफेस कैसा होता है, फ्लैट होता है. ठीक है. द पॉटर व्हील कंसिस्ट ऑफ ए राउंड फ्लैट वुडन सरफेस भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है. इज इट क्लियर. सो पॉटर व्हील कंसिस्ट ऑफ ए राउंड फ्लैट वुडन और मेटल सरफेस. इट मूव्स व्हेन द पॉटर शेप क्ले ऑन इट. और उसने, मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, एक स्टिक रखी थी. ठीक है. व्हील में एक छोटा सा होल होता है, उस होल में स्टिक लगा देते हैं. स्टिक लगाने के बाद फिर उससे उस व्हील को क्या करते हैं, घुमाते हैं. ठीक है. इट मूव्स, व्हील को क्या करते हैं, उससे मूव कराते हैं. और इट मूव्स, और व्हील को कब मूव कराते हैं, व्हेन द पॉटर स्टार्ट मेकिंग द potter start giving shapes. Okay, so it moves when the potter shapes clay on it to make earthen pots. ठीक है. वो उसको तब मूव कराते हैं जब क्ले को व्हील पे रख के, ठीक है, पॉटर क्या कराता है, उससे मूव कराता है और डिफरेंट शेप्स देता है, और इससे अलग अलग तरह के मिट्टी के बर्तन बनते हैं. ओके. सो स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन आंसर in the next video. Thank you.